स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਬੇਸਡ ਵੀ ਸੀਗੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਕੋਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਪਰਿਮੇय ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ कि इरैशनल नहीं है, नॉट इरैशनल। तो √2 ये सारे ही इरैशनल विच आ जाते हैं। तो 6 + √9 आप सॉल्व करके 6 + 3 9 लिख सकते थे। तो ये सी अपना आंसर जो कि एक रैशनल नंबर है। एल्फा बीटा बहुपद x² + x + 1 ਦੇ ਸਿਫਰ ਹਨ। ਇਹਦੇ रूट्स दे रखे सी। ਤੇ ਐਲਫਾ + ਬੀਟਾ + ਐਲਫਾ ਬੀਟਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਔਰ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਫਾ + ਬੀਟਾ -1 ਹੈ ਤੇ ਐਲਫਾ ਬੀਟਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਸੀ। ਸੋ -1 + 1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਸੀ 0। ਹੇਠਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ 2/4 -3 -6 ਐਂਡ 5/10 ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ 1/2 1/2 1/2 ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹਨ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ। ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ k/6 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਕੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ k ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ। 5th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ -1/2 ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ k ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ -1/2 ਸਕੁਆਇਰ k ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ -1/2 -5/4 ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 0 ਦੇ। ਤੇ ਆ ਗਿਆ 1/4 ਪਲੱਸ k/2 -5/4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਸੋ k/2 ਇਜ਼ 1 - 5 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ -4/4। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ -4/4 ਇਹ -1 ਬਣੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ +ਦਾ 1। ਸੋ k ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2। ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ x + 2 ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਰਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ x² + bx + c ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ, ਬਟ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। x + 2 ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ -2 ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੈਂਟ 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੈਂਟ 0 ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ। √7 √20 √63 ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। √7 ਤਾਂ √7 ਹੀ ਹੈ। √28 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय 7 ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2√7 ਬਣ ਗਿਆ। √63 ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय 7 ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3√7। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ 4√7। ਹੁਣ 4√7 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 16 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय 7 ਯਾਨੀ ਕਿ 112 ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੂਟ। ਸੋ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। AP ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ AP ਦਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤਾਂ D ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ A + 7D ਔਰ -A - 3D ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 20। ਤਾਂ 7 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਗਏ ਤਾਂ 4D ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 20। ਤਾਂ D ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5। ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਹੀ ਕਥਨ ਚੁਣੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। 6√3 ਔਰ 3√3 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ठीक है, और 7.6 और 3.8 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਇਧਰੋਂ 12/6 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਆਪਸ ਚ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। 6√3 ਔਰ 3√3 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਸੋ 6√3 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕੋਣ Q ਔਰ 3√3 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਹੈ B। ਸੋ B ਔਰ Q ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ B ਔਰ P ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PR 7.6 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕੋਣ P, ਤਾਂ ਕੋਣ P ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ AB ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ C। P ਔਰ C ਆ ਰਿਹਾ। E ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 16 ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ। ਆਹ ਦੂਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 16 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿਓ। CP ਦੀ ਸ਼ੀਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਬੇਟਾ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। 10 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ।
11th क्वेश्चन सी -8,0 8,0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸਿੰਪਲੀ ਆਨਸਰ 0,0 ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਖਾ ਲੈ ਲਈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ ਰਿਹਾ 0,0 ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ -8,0 ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ 8,0 ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ 0,0। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੇਂਜੈਂਟ 45 ਬੇਟਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। cos of 90 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1 cos 90 ਡਿਗਰੀ यानी कि 1/0 की होएगा नॉट डिफाइंड। 90 भी बेटा 1 होंगे। हेठ लिखा बच्चों केड़ा कथन सही है। कोसेकेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर है ना। ये दो अपन फॉर्मूले आप किए हुए हैं। एक घड़ी की मिनटा वाली सूई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ये थोड़ी बुक के क्वेश्चन दे रखे। इस सूई द्वारा 10 मिनटा के तय किए खेतर का कोण पता करो। क्वेश्चन बेटा थोड़ा घुमाण दे लई दे रखा सीगा। इहदे विच आपां नूं इहदी लंबाई की कोई लोड़ नहीं सी। घड़ी की सूई की लंबाई जिन्नी मर्जी होवे वो 1 मिनट दे विच अपने कोल 60 डिग्री कोण बनाती है, तो 10 मिनटां दे विच उन्हें 60 डिग्री का कोण बनाना सी। सो इहदा ईडी ऑप्शन राइट है। पी ए किसी घटना की संभावना है तो किहड़ा कथन सही हुंदा है। हमेशा घटना की संभावना 0 और 1 दे विच हुंदी है। नैक्सट आ गया आंकड़ियां दे लई बहुलक वर्ग किहड़ा होएगा। बहुलक वर्ग किहड़ा हुंदा बेटा जिहदी फ्रीकुएंसी सब तो ज़्यादा होवे। तो 40 तो 50 आ गया। आ थोड़ा जा क्वेश्चन टेढ़ा सी। एक तो 52 पत्तियां दी ताश है, उस तो बाद उन्हें क्या एक पत्ता कढ़िया है तो उन्हें कहा है लाल चित्र पत्ता। एक्चुअली बेटा जिहड़े चित्र पत्ते हुंदे या फेस कार्ड्स हुंदे ने टोटल किन्ने हुंदे ने 12। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੈੱਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 6 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ 6 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਟਾ। 52 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ, 26 ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 6 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਸੀ। ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ ਦਾ 6/52 ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਸ਼ੰਕੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ h ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ शंकु दे आकार दा है जिसकी उचाई h है। शंकु की उचाई कितनी है h है तो अर्ध व्यास कितना r है। तो आ वाले पार्ट का अर्ध व्यास भी जोड़ा कितना होना सीगा r ही होना सीगा। तो अर्ध गोले ते रखा होया है। खिलौने की कुल उचाई कितनी होनी सी h प्लस r। तीन घण दे किनारियां नूं जोड़िया गया है और घनाव बनाया गया है। प्राप्त घनाव का आयतन पता करो। 2 वाला तो अपनी बुक के क्वेश्चन सी। इत्थे हुण 3 कहे ने तो इस तरीके नाल 3 आपां जोड़ते हैं। हुण असली गल है कि इहदी लेंथ चेंज हो गई है 5 5 5 और लेंथ जिहड़ी हो गई है अपने कोल 15, लेकिन ब्रैथ अजे भी 5 है और हाइट अजे भी 5 है। तो इन्हां नूं मल्टीप्लाई करांगे तो अपने कोल 375 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। 15 गुणा 25। चलो नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं। 5 माइनस रूट 7 की मूल बिंदु तो दूरी की होंगी है। मूल बिंदु तो दूरी का बेटा फॉर्मूला की सीगा x² y² और अंडर दी रूट। तो 25 प्लस 49 का आप अंडर दी रूट करना प्लस करके और ये हो गया अपने को 74 अंडर दी रूट। तो ईडी ऑप्शन अपने को आ गया सही। सो ये सी थोड़े 1 मार्क्स के क्वेश्चन। हुण आप 2 मार्क्स क्वेश्चन देख लेंगे। पहला दे विच क्वेश्चन सी 96 एंड 404 का महत्व समावर्तक ते लघुत्तम समावर्तक पता करो। बुक का क्वेश्चन सी बेटा तो कोई खास डिफिकल्ट नहीं सी। मैं जो फील किया पेपर दे विच अपने 1 मार्क्स से ज़्यादा कंसैप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आए ने। बाकी क्वेश्चन थोड़े किए हुए सी और बुक दे विचों ही सी और ईजी भी सी। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं सी 2-3 क्वेश्चन छड़ के। सो आप फैक्टर्स बनाइए, ये बन जाते हैं। आ वाले फैक्टर्स ये बन गए, ठीक है। इधरों आप बनाइए 2 ले लो, चलो 202 और उस तो बाद फिर 101, ठीक है। सो आप 96 नूं लिख सकते सीगे 2 दी पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 1 और 404 नूं आप लिख सकते सी 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 101। सो HCF देखिए तो अपना 2 पावर 2 आ जाएगा और LCM देखिए तो 2 पावर 5 3 मल्टीप्लाइड बाय 101 यानी कि 9696 आ गया अपने को। दोनों आंसर अपने को आ गए। इतने आ गया 4 रूट 5
दोनों सिफर दे रखिया ने। ये क्वेश्चन बेटा मैं थोड़ा बहुत बारी करवाया है कि अगर आपां सिफर दे रखिया हो तो पहला आप सिफर का जोड़ पता कर लो और सिफर की गुणा पता कर लो। जोड़ इत्थे कितना आ रहा है √5 प्लस माइनस √5 का आंसर कितना आ गया अपने को 0 और मल्टीप्लाई करांगे तो √5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस √5 आ जाएगा मेरे को -5। हुण मैं थोड़ा फॉर्मूला की करवाया सीगा x² माइनस SX प्लस P। ठीक, सो x² माइनस सम जो कि 0 आ रहा है नाल x और -5। सो x² माइनस 5 जोड़ा है वो इहदा आंसर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सीगा। अंक गणितिक लड़ी दा किनवा पद 78 है। बुक का क्वेश्चन है, थोड़े रट्टे लगे भी होने तो थोड़ा इनका आंसर भी याद हो गया होना। क्वेश्चन है अपने को 3 8 13 दोबारा लिख लें 3 8 13 एंड सो ऑन। ठीक है, 78 के लिए आप एन पता करना सी। सो ये अपने को ए जोड़ा है वो 3 है और डी कितना है 5 है। ठीक है, 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n-1 इंटू 5 तो 78 माइनस 3 अपॉन 5 आ गया मेरे को n-1। दिस इम्प्लाइज n आ गया मेरे को 15 प्लस 1 यानी कि 16 आंसर आ गया है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन सी, बहुत ही सिंपल। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन सारे बेटा बुक दे विचों ही सीगे। LMCB दे परपेंडिकुलर है आ दे रखा है और LN जो है वो CD दे परपेंडिकुलर है। तो ये भी की सी बेटा एक सिंपली अपने को थेल्स थ्योरम की एप्लीकेशन सी। तो इत्थे तुसीं इहनूं ट्रायंगल नूं तुसीं आई होप कोई क्वेश्चन कर ही लिया होएगा कि पहली ट्रायंगल ले लो और दूसरी ट्रायंगल ले लो और थेल्स थ्योरम लगा के AL अपॉन LC इज इक्वल्स टू AM अपॉन MB आ गया इत्थों। ठीक है, या तुसीं ए भी लिख सकते सीगे कि AL क्योंकि इन्हें AB पूरा लिया तो AB पूजा ले लेंगे आप। सो AM अपॉन पूरी दी पूरी पूजा AB ले ली। ठीक है, तो इधरों भी क्या आ जाएगा AL अपॉन पूरा का पूरा AC आ गया। सो ये पहली इक्वेशन बन गई सी। दूसरी सिमिलरली AL आ वाला दूसरा ट्रायंगल ले लिया तो AL अपॉन AC इज इक्वल टू AN। ठीक है, अपॉन पूरी दी पूरी पूजा AD। सो बाय 2 1 एंड 2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਹ ਇਕੁਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ AM अपॉन AB AN अपॉन AD। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੋ ਸਮਕੇਂਦਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਅਰਧਵਿਆਸ 5 ਅਤੇ 3 ਹੈ। ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਉਸ ਜੀਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਬਟ ਇਹ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਲ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਸਰਕਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ। ਆ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਲੈਂਥ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 5 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ और जो छोटी रेडियस है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर्स यानी कि जो आ वाला परपेंडिकुलर थोड़ा नज़र आ रहा असल दे विच ये है 3 सेंटीमीटर्स। ठीक, और क्वेश्चन विच पूछा गया है कि जिहड़ा वड्डा सर्कल है उहदी उस जीवा की लंबाई पता करो। आ वाली लंबाई पता करो जोड़ी कि पहले दे अर्ध व्यास नूं छूंदी होवे स्मॉलर सर्कल नूं छूंदी होवे। ठीक है, हुण स्मॉलर सर्कल नूं छूएगी तां रेडियस और टेंजेंट जिथे मिलदियां ने बेटा इस कोण नूं 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। ठीक है, हुण मैं आ वाली लेंथ जिहड़ी है वो पता करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार 5² माइनस 3² अंडर द रूट इस PA का मुल हो जाएगा। तो 25 माइनस 9 यानी कि अंडर रूट 16 तो मेरे को कितना आ गया 4 सेंटीमीटर्स। लेकिन ये पूरी दी पूरी कॉर्ड जिहदी लंबाई ए बी अगर आप लई है तो ए बी जिहड़ी है वो दुगनी हो जाएगी 4 दे तो 8 सेंटीमीटर आंसर आ गया। नैक्सट क्वेश्चन की कहता बेटे, नैक्सट क्वेश्चन भी थोड़ा किता होया ही है क्वेश्चन ये कॉट
15 cot A बराबर 8 है तो साइन ए ਅਤੇ टेंजेंट ए ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 cot A बराबर 8 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 15 cot of A बराबर 8 यानी कि cot of A ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 8/15 ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ टेंजेंट A ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 15/8। ਸੋ ਆ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ABC ਨਾਮ ਦੇ ਲਵਾਂ ਤਾਂ 15 इज परपेंडिकुलर और 8 हैगा है मेरा बेस। तो आ गया 15 आ गया 8 तो हाईपोटेन्यूज मैनू नहीं पता, वो पता करनी पेगी पहला। सो AC या करंट की गल करिए या हाईपोटेन्यूज किहदे बराबर हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर दी रूट यानी 225 प्लस 64 यानी कि 289। सो आ जाएगा 17 सेंटीमीटरस। मूल इन्हें पूछा है एक साइन ए का मुल पूछा है और टेंजेंट ए का मुल पूछा है। तो साइन ए हुंदा है परपेंडिकुलर पर हाईपोटेन्यूज, टेंजेंट ए तो आप पता कर ही लिया है उसका उल्टी सीगा। तो परपेंडिकुलर मेरे को हैगा है 15 और हाईपोटेन्यूज आ गया मेरे को 17। तो ये आंसर अपना आ गया। नैक्सट क्वेश्चन अपने को एक रह गया हुण हेठा ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0.992 ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਸਿੰਪਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ लगाओ PE0 1 PE ठीक है और 1 0.992 और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1000 ਵਿੱਚੋਂ 992 ਤਾਂ 8 ਆ ਗਿਆ और 0.00 ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਆਨਸਰ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲਨੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ 2x² - 3x + 5 ਦੀ ਮੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੂਲ ਸੀਗੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਉਹ एक्चुअली नॉन रियल निकल रहे थे, वास्तविक नहीं सी। सो डिस्क्रिमिनेंट इत्थे b² - 4ac इज इक्वल्स टू ए आ गया सी 9 - 4 × 2 × 5 तो 9 - 40 यानी कि -31 <0 आ रहे सी। तो मूल जेडे सी संभव ही नहीं सी तो पता था क्या करने ने। ठीक है और दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सी x + 1 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 72 ਦਾ 9 और 8 ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ AP ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੇ AP ਦੀ nth ਟਰਮ ਦੇਤੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ AP ਦੀ 2 ਟਰਮਸ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ A और D ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ A D ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ S24 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ 3 + 2 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 और A2 लगावांगे तो 3 + 4 आ रहा सीगा मेरे को 7। तो वैसे भी 2 का मल्टीपल था D तो मेरे को 2 ही सी और A कितना आ गया सीगा 5। सो A लगाना सीगा आपा S24 का। S24 कितना आना सी 24/2 और 2A + 23D। ठीक है सो ये आ गया 12। 2 × A कितना कटिया 5 और D कितना कटिया है 2 तो 10 + 46 सो 12 × 56 तो 672 आ गया अपने को। नैक्सट बेटा क्वेश्चन आ गया थोड़े को क्वेश्चन नंबर 11 5 और -6 ਤੇ -1 -4 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ y ਧੁਰਾ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ -1k और +5 k + 1 किहदे बराबर आएगा 0 दे। सो -k + 5 = 0 सो k = 5 ते -6 और अपॉन क्या आ गया अपने को 6 -26/6 यानी कि -13/3। सो पॉइंट जेड़ा है इंटरसेक्शन का हो गया 0, -13/3। सो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरीके नाल बेटा आ वाला क्वेश्चन भी निकल जाएगा
ए ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੱਖੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬੇਟਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ a ਮਾਈਨਸ ਕਾਟ a ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਾਸ a ਅਪਨ ਕਾਸ a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜੀਵਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਮਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤਾਂ r ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ। ਸਮਕੋਣ यानी कि थीटा मैंने दे रखा 90 डिग्री। तो संगत लघु अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल तो 90 डिग्री बेटा 1/4 ऑफ अ सर्कल होंगे। सो पाई r स्क्वायर बटे 4 आंसर कढ़ना सी। ठीक है, उस तो बाद इन्हें दीर्घ का भी पूछा सी, तो 3 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 हो जाना सीगा सिंपली, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा आप। एक गोलाकार कंच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है और जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो इनू मैं फोटो नू थोड़ा क्वेश्चन नू थोड़ा फिगर ड्रॉ करके समझा दिंदी हाँ। और जिहड़ा स्फेरिकल पार्ट है यानी कि आह वाला पार्ट है, इहदा डायमीटर या अर्ध व्यास जिहड़ा है वो 8.5 सेंटीमीटर सी। सो पूरा दा पूरा जे आपां डायमीटर लगा लीए तो 8.5 सेंटीमीटर सी। सो इहदा रेडियस 8.5 बटे 2 सी। ओ सी 345 सेंटीमीटर क्यूब। जांच करो कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, ये मानते हुए कि उपरोक्त मापन अंदरूनी मापन है अते पाई की कीमत आपां नूं दे रखी है 3.14 सेंटीमीटर। आपां की पता करना है, वॉल्यूम ही पता करना है, चेक करना है जो 345 आंदा है कि नहीं। सारे माप आपां नूं बेटा सेंटीमीटर्स दे विच ही दे रखे। तो टोटल वॉल्यूम जिहड़ा है वो टोटल आयतन किहदे बराबर होएगा, सिलेंडर का आयतन यानी कि पाई r स्क्वायर h प्लस स्फीयर का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। तो जे आप दोनों नू जोड़ते हैं सो ये 346.512 सेंटीमीटर क्यूब के अराउंड आ जाता है, नॉट एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेटली। सो बच्चे ने जो कैलकुलेशन की सी वो 345 की सी, आंदा सर्वे 346 है। सो आपां की कहांगे बच्चे की जिहड़ी कैलकुलेशन सी वो गलत सी, इनकरैक्ट सी। 1.512 का फर्क पै रहा है। नैक्सट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन सी बेटा दूसरा, नैक्सट क्वेश्चन सी सिमरन ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੈਪੁਰ ਘੁੰਮਣ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ। ਤੰਬੂ ਇੱਕ ਵੇਲਣ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੰਬੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵੇਲਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨਵਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਚਾਈ 2.1 मीटर है। आ 2.1 मीटर हो गई है और इसका व्यास 4 सेंटीमीटर, आ पूरा 4 मीटर है व्यास। फिर पिताजी ने सिमरन नूं तंबू नाल संबंधित कुछ सवाल पूछे। तंबू बनाउण विच वरते जाण वाले कैनवस की कुल क्षेत्रफल पता करो, सूत्र लिखो और तंबू के शंकु वाले हिस्से की तिरछी ऊंचाई कितनी है वो पता करो। ठीक है, और यात्रा दौरान तंबू बनाउण लई वरते गए कैनवस का क्षेत्रफल पता करो वो है। और नीचे जिहड़ा सिलेंडर दे रखा है वेलन आकार दे रखा है। सिलेंडर की हाइट असल दे विच जिहड़ी है वो 2.1 मीटर दे रखी सीगी इन्नी। ठीक है, और इहदा जिहड़ा रेडियस है वो दे रखा है 2 मीटर टोटल, क्योंकि 4 मीटर सी। हुण उन्हें कहा है फॉर्मूला फॉर द टोटल एरिया ऑफ द कैनवस, तो वो तो कोन दा टेढ़ी सतह का क्षेत्रफल है ना, और प्लस सिलेंडर का टेढ़ी सतह का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। तो यह तो आ गया अपने को पहले पार्ट का आंसर। हुण दूसरा वो कह रहे स्लांट हाइट पता करो, स्लांट हाइट ऑफ कोन। हुण गल है कि कोन की स्लांट हाइट पता करने के लिए बेटा आपां नूं कोन की हाइट पता होनी जरूरी सी, जो कि क्वेश्चन च गिवन है। तो थोनों ये क्वेश्चन च ग्रेस मार्क्स मिलनी ही चाहिए है। ठीक है, तुसीं इत्थे सिंपली फॉर्मूला अगर लिख के आए हो तो थोनों ये ग्रेस मार्क्स जरूर मिल जाएगी। फिर उसके बाद पूछा टोटल एरिया ऑफ कैनवस जो कि टेंट नूं बनाउण लई आपां ने यूज़ करना है। तो एल की जो वैल्यू ही नहीं आनी है तो क्वेश्चन सॉल्व ही किवें होएगा। ठीक है,
बुक के हिसाब नाल अगर आप चलीए तो इत्थे एल की वैल्यू जी 2.8 मीटरस आती है, फिर क्वेश्चन ने हल हो जाता। बट अटे जो आपको गिवन ही नहीं, एच ही नहीं गिवन, तो आप एल पता कितों कर लेना सी, या तो फिर सिलेंडर की टोटल हाइट दे रखी होंगी, सॉरी टेंट की टोटल हाइट दे रखी होंगी, वो भी मिसिंग है, वो भी नहीं दे रखी है। इकला सिलेंडर की हाइट के नाल आप कोण का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने कोई चीज़ का रैफरेंस दिता नहीं है, सिर्फ यही कहा कि टेंट शेप्ड सीगा किवें दा, कोण उहदे उपर सी, लेकिन हाइट सिर्फ सिलेंड्रिकल पोर्शन की दे रखी सी। सो ये क्वेश्चन इत्थे तक ही तुसीं सॉल्व किया होना एग्जाम दे विच भी, ठीक है। जे पिछला किया फिर चलो वो तो सॉल्व हो ही गया होना पूरा, ਇਹਦਾ जे दूसरा पार्ट किया तो उस तो बाद आप बेटा चलते हैं अपने पार्ट डी दे वल। पार्ट डी दे वल जिहड़ा बेटा क्वेश्चन आया सी, वो पहला क्वेश्चन सी पड़ताल करो कि समीकरणों का जोड़ा संगत है या असंगत, और संगत है तो किहड़ा हल होवेगा, तो हल पता भी करना सी। बहुत ही सिंपल जा क्वेश्चन है। तो पहली गल तो तुसीं A1 B1 करके इहनूं सॉल्व कर ही लिया होना ना, तो 3/7 इधरों -1/2 तो 3/20। सो ये पहला ही नॉट इक्वल टू आ गया, तो द यूनीक सॉल्यूशन आना सी, यानी कि ये कंसिस्टेंट है, जोड़ा जो है वो संगत है। तो पहली गल तो यह हुई। तो इत्थे नूं सॉल्व कर लो बेटे, इनू कर लो 2 नाल मल्टीप्लाई, इनू 1 नाल आपां y दे कोफिशिएंट्स नूं इक्वेट कर लैंदे हैं। तो 6x - 2y = 6 आ गया, इधरों 7x + 2y = 20 आ गया, ठीक है। ईजीयर सीगा इवें करना, अदरवाइज 3 और 7 नाल मल्टीप्लाई करना पैना सी। इनू ऐड कर दो सिंपली, तो इत्थे तो कट्टिया ही गया, कितना आ गया 13x और एक कितना आ गया 26। तो x आ गया मेरे को 26/13 = 2। तो 3 × 2 - y = 3, 6 - y = 3, -y = 3 - 6, तो y = आ गया मेरे को +3। सो x 2 है और y कितना आ गया 3। इनू आप चैक भी कर लेंगे हैं। तो 7x + 2y की वैल्यू कढ़ी 7 × 2 + 2 × 3, तो 14 + 6 कितना आ गया 20, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। सो 6 मार्क्स का बहुत ही ईजी क्वेश्चन सी। एक्स नोट आप कह लेंगे हैं 50 रुपए वाले ने, और वाई नोट जोड़े हैं वो 100 रुपए वाले ने, तो ये दोनों नोटा का जोड़ा जोड़ है वो सी 25, ठीक है। पहली गल तो तुसीं पूरा इक्वेशन बना के बेटा लिख के किया होना क्वेश्चन, मैं थोड़ा बस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ कि इसका आंसर थोड़ा पता लग जाए की आना सी। ते दूसरा 50-50 के नोट सीगे ना एक्स वाले, और 100-100 के नोट सीगे वाई कुल, ते कुल पैसे किन्ने बने अपने कोल 2000। बस इत्थों सिंपली इनू सॉल्व कर लो। इस इक्वेशन को तुसीं 50 नाल मल्टीप्लाई कर लो, तो अपने कोल 50x + 50y = 1250 आ गया। इनू आपां कर लईए माइनस, तो ये आ गया मेरे को 50y किहदे बराबर आ गया 0, 10 विचों 5 गए 5, तो 9 विचों 2 गए 7, ठीक है। 750 के बराबर आ गया है। तो y आ गया 0 0 कैंसल हो गया, और ये इत्थे कैंसल हो गया, तो आ गया 15। तो y तो आ गया मेरे को 15, यानी कि 100-100 के नोट मेरे को 15 सी। हुण आपां पता करना x, तो x + 15 जो 25 के बराबर सी, तो x किहदे बराबर आ गया 25 विचों 15 गए, तो आ गया मेरे को 10। तो 10 नोट सीगे मेरे को 50 वाले, तो 50 × 10 + 15 नोट सीगे 100 वाले। सो 500 + 1500, लो जी अपने को 2000 रुपये पूरे हो गए, तो आंसर अपना चेक भी हो गया। चलो नैक्सट क्वेश्चन नंबर 17 बेटा बच्चा थोड़ा जा कन्फ्यूजिंग लग रहा सी, वो देख रहे थे यदि फोटो कि फोटो की दे रखी है, फोटो सी देखी नहीं हुई पहला, और वो थ्योरम पता नहीं उन्होंने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो थ्योरम तो अपने को स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखावां की लंबाई बाहरी बिंदु तो बराबर होंगी है, वो ये वाली थ्योरम सी। तो बहुत ही सिंपल जी थ्योरम सी, तुसीं कीती भी होनी, और मैं चैनल पर इसका प्रूफ पाया भी होया। तो दूसरा की सी, दूसरा 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 या पता नहीं 1 नंबर दिते जाएंगे, बट एक क्वेश्चन बहुत ही सौखा सी। वो कह रहा सी PA जोड़ा है वो 9 सेंटीमीटर के बराबर है, तो PB किहदे बराबर। लो जी क्वेश्चन का आंसर तो विचे दे रखा से, कह रहा है कि भाई स्पर्श रेखावां बराबर होंदियां, सिद्ध करना है। इसका मतलब PB कितना सी 9 सेंटीमीटर। तो जिहड़ा बच्चा इस क्वेश्चन की फिगर बना के इन्ना लिख के आएगा ना, उन्होंने भी 2 नंबर मिल जाएंगे।
ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥਿਓਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਔਰ 1 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਧਮਾਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸੀ ਮੀਡੀਅਨ ਤੇ ਮੱਧਮਾਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਕਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕੀ ਆਇਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 1260/50 ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡ, ਤੇ ਇਹ 25.2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। n/2 ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 34, ਠੀਕ। ਤਾਂ 125 ਤੋਂ 145 ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਅਨ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਲਗਾਉਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ 137, ਤਾਂ 137 ਆਪਣੀ ਮੱਧਿਕਾ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ, ਔਰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀਗੇ, ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਥੋਰਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਪੇਪਰ ਈਜ਼ੀ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।